Talking about fatherhood, fatherhood आप कैसे explain करेंगे? I think fatherhood explain नहीं कर सकते, but you have to live it to explain, to feel it, because like they say, a mother's warmth, a mother's love is visible. मतलब आप जब एक माँ की आंखों में देखते हैं, you can see the love for the child. But maybe the fathers are not that expressive about it. But I think the fathers have tremendous love for the children, but it's just that they are unable to explain it or express it, which is a drawback. But it's brilliant. I think it's a fantastic feeling. Life की सबसे सुकून वाली feeling है when see your daughter playing or sleeping or in whatever state she is, whatever she's doing. That's the most peaceful side in the world. And how was the feeling जब आप गोद में लिया? रो दिया था यार. And secondly, जब umbilical cord कटने की बारी आती है तो मैं तो ऐसे हो रहा था ऐसा. So yeah. तो who's Meher close to you? और ऐसे बोलते हैं कि close होती हैं बेटियां. हाँ बोलते तो हैं गर्ल्स एंड डैडी गर्ल्स, पर अभी तो सिर्फ 6 महीने की यार. अभी तो उसे खुद नहीं पता कि आसपास का माहौल क्या है, क्या हो रहा है, कौन क्या है. So she's just getting used to faces right now. अब जाकर I think she recognizes who her mother and father are, and now she's getting to know the other parts of the family. So yeah, I'm sure, but all girls, I like all girls. She's going to be daddy's girl. Okay, Karan, अगर थोड़ा सीरियस टॉपिक की तरफ ये करें तो आपके और अंकिता के रिलेशनशिप में काफी बार ऐसा हुआ था इनिशियली जब अंकिता को टारगेट किया जाता था आपके आपके कुछ चाहने वाले हैं उनके तरफ से. एज अ पार्टनर आप लोगों ने एक दूसरे को तब कितना सपोर्ट किया, कितना एक दूसरे के साथ स्टैंड बाय किया? See, as a partner, so I will always stand by Ankita. मतलब no matter what. I mean, even if the entire world is against or what, जो पूरी दुनिया को आना है तो आ जाए. I'm not going to leave her side. I'm going to stand right in front of her, in fact, not behind her. But the point is not that. The point is कि क्या है कि आप when you let a third person or let people who don't matter, don't exist for you, make such a big difference to you, then it is a win for them. Right. है ना? वो ऐसी भंड जाती हैं जो ये सब करती हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिले. और अगर आपने उनको वो दे दिया, that means वो जीत गए अपने मकसद में, which is not the point. There is no bigger slap on their face than ignoring them. Right. है ना? क्योंकि आप एक स्टेटस पे हो, आप एक लेवल पे हो, आप एक दर्जे पे पहुंच चुके हो, इसीलिए लाखों लोगों के पिछड़े में चू लेके वो आपकी उंगली करें ताकि आप रिएक्ट करें. है ना? बिल्कुल. तो जब मैं तो सिंपल बोलता हूँ, जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार. खत्म बात. ऑल्सो जब मेहर आप दोनों की जिंदगी में आई, उससे आप दोनों और कितना ज्यादा क्लोज आए? क्योंकि एक ऐसा भी जब से मेहर आई है तब से जब एक ऐसा भी वक्त आया जब आप लोग खुशी के बहुत करीब थे, लेकिन I don't want to talk about it. I know. No, but when Meher came into our life, I think it has bonded us eternally. But एक बात तो है कि बच्चा आते ही पति के लिए तो I think the first 6 months or 8 months, every mother, every wife has to give it to the child, because that's the kind of dedication that's required from a mother's end. Right. And उतना डेडिकेशन आई थिंक एक बाप को नहीं दे पाता. एक वक्त वो जो जितना वो आधी रात को उठ जाना, पूरी रातें जागते रहना, ये वो आई थिंक वो बाप की बापता कभी नहीं कर सकती. वो माँ की ममता ही काम आती तब. बट आपने किया है कभी? रात को जागे आप, नैपीज बदलना सीख गए? हाँ यार, मैं जागा था बीच में 1-2 बार बीच में. बट आई डू हेल्प आउट व्हेनेवर पॉसिबल इन द डे टाइम. बट रातों को जागना मेरे बस की बात नहीं है. तो उसके लिए आई थिंक अंकिता इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज यार मेरे से नहीं उठा जाता रात को. और कितना सपोर्ट करते हैं आप दोनों एक दूसरे को पेरेंटिंग में? Parenting, I think, parenting is a job of give and take. No father or mother or none of the partners can expect to give less and gain more, or give more and gain less. I think it's an equal job, responsibility for both. जितनी जिम्मेदारी माँ की उतनी बाप की भी है. I think both of when the mother and father both work in tandem is when the upbringing turns out to be absolutely perfect for the child. And motherhood के बाद अंकिता में कितने changes आए हैं जो आप as a third person आप देख रहे हैं? Want your wives to stop nagging? I think guys should get a baby as soon as possible. Have a baby. The wife stops nagging the husband. क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ना उसको. So that's the biggest advantage.
but nonetheless, I think she is probably one of the. After I think मैं कभी बोलते ना कि I think she's the best mother in the world. I wouldn't say she's the best mother in the world, but I don't think the best mother in the world could have been any less than what she is. करण, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, आप बहुत वोकल हैं, आप किसी से नहीं डरते, ना कुछ सोचते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करने से पहले, वॉइस आउट करने से पहले। अभी भी जब इतने सुसाइड केसेस हो रहे हैं, आपको लगा कि एक मैसेज देना चाहिए कि सुसाइड, भले ही लोग बोले कि उसमें बहुत करेज लगता है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत चीज है, बट हैविंग सेड दैट, फ्रेंड्स लाइक कुशाल पंजाबी, सुशांत सिंह राजपूत, how difficult has it been for you personally? See, it is very difficult. Sushant was a very good friend. Kushal was a good friend, not a very good friend, but yeah. But the point is, you know what, आपको तकलीफ होती है, चोट पहुंचती है, दर्द होता है, but at the same time, उन्होंने जो किया, वो क्यों किया, वो no one knows better than them, and ना ही शायद कोई जान पाएगा, because वो I think वो जो कारण था, वो उनके साथ चला गया, है ना? तो अब assumptions करके या उस बारे में कहानियां बना के या ख्याली पुलाव बना के लोगों से डिस्कस करके, I think you are degrading, or you are I think insulting that person, and whereas you should be loving that person or probably cherishing that person's memories, I think you are not giving that person the dignity that person requires or commands or deserves. अगर कोई इंसान ने अपनी जान लेने की सोच ली है या ले ली है, and he committed that deed, तो उसके अपने रीजंस होंगे, भले वो रीजन सही हो गलत हो, वो हम और आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं है, पर उसने वो कर दिया, वो इंसान चला गया। अब वो इंसान चला गया तो इट इज रादर यू मोर्न दैट पर्सन डेथ, है ना, शोक मना लो, एंड देन यू गेट ऑन विथ योर लाइफ। अब घड़ी बार उस इंसान की इस बात को याद करके और उसके बारे में 10 कहानियां और बना के, you are just doing nothing but you are being, I think you're being inhuman यार। किसी को चैन से मरने दो, जीने तो वैसे ही देते लोग। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जब एक बड़ा सेलिब्रिटी ऐसा कुछ करता है तो एक रॉन्ग मैसेज भी जाता है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि काफी सारे न्यूज आए कि काफी सारे फैंस ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की उन्होंने। तो ऐसे टाइम में बाहर आकर बोलना भी बहुत जरूरी है कि सुसाइड इज नॉट द राइट वे यार। सो व्हेन अ नोन पर्सनालिटी टेक्स अ सर्टेन स्टेप, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, obviously it does influence a lot of people, lot of fans या जितने भी लोग उसको चाहते हैं, but at the same time I think अगर आप मुझे लगता है कि एक certain age के बाद ना everybody should have the common sense to differentiate between what should be followed and what should be just kept at a distance. Like for example, I don't encourage any of my fans to smoke. I am a smoker, but I don't encourage them to smoke. But अगर मुझे सिगरेट पीता हुआ देख के अगर वो सिगरेट पीना शुरू कर दे, तो वो शायद उनकी बेवकूफी भी है साथ, है ना? Right. How much ever I'm thankful for their love and affection towards me, I will also say that you don't be as foolish as to not understand what you should learn from me and what you should just ignore, which habit of mine you should ignore. And secondly, I said कि ये और क्या होता है कि एक इंसान जब ऐसा कुछ कर लेता है ना, उसके बाद जो इंसान उस सिचुएशन में नहीं भी होता ना, वो भी जबरदस्ती अपने आप के बारे में उस सिचुएशन में अपने आप को सिचुएशन में डाल के कहानियां बुनने लगता है कि लोगों की अटेंशन मिले उससे। See, there are a lot of people, है ना, जैसे सुशांत के साथ जो हुआ, उसके बाद कुछ नेपोटिज्म के बारे में 1-2 लोगों ने बकवास शुरू कर दी, एंड देन यू कम फ्रॉम आप देख लो कौन नहीं कूदा उस ट्रेन पर। जी बिल्कुल। राइट फ्रॉम अभिनव कश्यप से लेकर आप जिसके भी नाम ले लो, वो सारे कूद पड़े उस पर। I mean, and I see no reason for people to rant about nepotism. For example, if a certain actress is talking about nepotism after Sushant's death, so I believe उनका अपना एक होम प्रोडक्शन आया था कुछ देर पहले, है ना? तो उसमें उन्होंने सुशांत को क्यों नहीं कास्ट किया अगर इतना ही बढ़िया एक्टर है? उसमें आई थिंक उन्होंने पहले सोनू सूद को कास्ट किया था, फिर किसी और को कास्ट किया, तो सुशांत अब याद नहीं आया उन्हें। बिल्कुल। और खुद तो आज तक मैंने देखा नहीं है कि शायद उसने किसी नए डायरेक्टर, नए एक्टर के साथ काम किया हो। सबसे पहला सवाल तो वो भी पूछती होंगी ना, भाई बैनर कौन सा है, या प्रोड्यूसर कौन है, या स्टूडियो कौन सी है बैकिंग कर रही है।
तो जब आपको भी बड़े नाम चाहिए तो आप नेपोटिज्म की क्यों पुंगी बजा रहे हैं? बिल्कुल। यू हैव योर ओन प्रोडक्शन हाउस, आप में हिम्मत है तो उठाओ ना सड़क से कोई काबिल राइटर, उठाओ सड़क से कोई काबिल डायरेक्टर, बनाओ एक फिल्म और बनो उसमें हीरोइन। आपको भी तो बड़े बड़े नाम चाहिए ना अपने प्रोडक्शन हाउस में। आपने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है तो आपने अपने प्रोडक्शन हाउस के सीईओ सीओओ जितने भी हैं वो आपके भाई बहन सब हैं, आपने क्यों नहीं रखे जॉब इंटरव्यूज? आई एम सेइंग दैट अगर नेपोटिज्म ना हो ना तो इट इज शॉकिंग, बिकॉज अगर एक इंसान की गद्दी या उसकी कुर्सी या उसकी जायदाद या उसका जो भी उसने कमाया हुआ है वो अगर उसके जाने के बाद उसके बच्चों के हाथ नहीं आएगा तो और पड़ोसी के हाथ आएगा, तो ये शायद सोचने वाली बात है कि हम क्या पागल तो नहीं है, तो मेहनत किसके लिए करते हैं? And I don't see anything wrong in the bigger stars launching the Star Kids or the Star Kids getting an easier chance. Yes, मैं भी बहुत it pinches me also a lot when I see some Star Kids getting an easier break, and then होता है frustration मेरी भी निकलती कभी-कभी कि क्या है यार, इनको चांस मिलता हमें नहीं मिलता। But then the point is कि बस होते हैं, हर की किस्मत है ना, उनकी किस्मत है वो उस घर में पैदा हुए हो, तुम्हारी किस्मत तुम इस घर में पैदा हुए हो। It's a matter of patience and time. अगर आपकी किस्मत में है, आपने मेहनत की है तो शायद आपको भी वो मौका मिलेगा जो उन्हें हो सकता है उनकी जिंदगी में 26-27 साल की उम्र में मिल गया हीरो बनने का मौका, आपको शायद हो सकता है कि 35, 36, 37 में मिल जाए। थोड़ा देर लगेगी क्योंकि उतनी देर आपको लगेगी अपनी मेहनत अपने टैलेंट तक पहुंचाने की, but there somewhere I think everybody gets the chance they deserve if they've done something good in life to get the chance that is. Karan, after spending so many years in the industry, what makes you relevant even today as an actor? In spite of spending so many years, but I haven't had that much of a vast body of work. आप शुरू के 5, 6, 7 साल तो मैंने सिर्फ वो blink and miss roles किए थे, है ना? I had done about 14-15 cameos in 14-15 different shows. मतलब आपने अगर आँख ऐसे की होगी तो मैं निकल गया होगा स्क्रीन पे आके, पता भी नहीं चला होगा। So the actual journey started only after Kasturi Raid happened for 2 years, and then again I had a down phase, and then Ye Mohabbat happened for 6 years, and I think that's when things started looking up. तो अगर देखा जाए तो relatively मैं अपने आप को considerably नया ही गिनूंगा। I think it's हालांकि इतने साल हो गए हैं, but लोगों को पहचान या लोगों तक अपने आप को पहुंचाने के मौके तो बहुत कुछ साल पहले से ही आए हैं ना। I think I'll relatively consider myself a newer actor. And do you take your work more seriously now than before? Yes, definitely. I think I've had my shares of down period, out of work periods because of my wrong attitudes, and I think I've learned a lesson. So I think I definitely take my work more seriously than before. And how did you dealt with that down phase? उस टाइम पे आप अपने आप को क्या बोल के मोटिवेट करते थे? यार क्या बोल के मोटिवेट करोगे? Nothing. You apart from just saying sorry that यार just sorry God, just give me another chance. Yeah, sorry to the people you've actually let down. आप अपने आप को मोटिवेट क्यों करोगे? मोटिवेट तो इंसान अपने आप को तब करता है कि जब आपने कोशिश की हो और आप हार गए हो और आपको दोबारा कोशिश करनी, पर आप तो हारे हो बिकॉज़ आपकी हरकतें वैसी थी. So I think there was no question of motivation. There was more of repention in my case. जी बिल्कुल. Thank you so much. It was pleasure talking to you. Take care of yourself. Be happy and stay safe. Thanks. Bye. Bye.